Yesterday we have discussed the quantization of elastic waves and phonon momentum. Okay, so based on two exercise, we got the impression that, uh, for example, neutron or electron they can get scattered with the phonon, है ना? So phonon से जब scattered करेंगे, so the phonon does not carry a physical momentum, but it will have a crystal momentum in k space, है ना? ये हमने कल देखा था. So today, in your syllabus, we have all three kinds of scattering. That is, scattering of photon with phonon, uh, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई फोनॉन्स, है ना. तो हम ये दोनों तीनों तरीके की पढ़ेंगे आज. टुडे वी विल सी द इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाई फोनॉन. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. Okay, so before going to the details of the particular scattering of neutron by phonon, let us understand the term scattering itself. Okay, we have witnessed many scattering processes in physics, है ना. For example, Compton scattering, Rayleigh scattering, okay, and many more scattering, X-ray scattering, neutron scattering. Okay, so we have n number of scattering processes in our physics. Okay, and we have also learned about their basics during the BSc. Okay, during the BSc course. So what happens when you have incident beam? Okay, so this is your incident beam. If this beam is collide with a scatterer, है ना, that is maybe a particle or atom or anything. Okay, so because of this scattering, you will have a scattered beam over here with a certain angle from the direct beam of the incident. Okay, so this whole picture or the whole phenomena is known as a scattering. Okay, here we have not discussed whether energy is conserved or not. This is just a simply scattering process where you have a incident beam. It is scattered with the target or the particle, and we will get a scattered beam over here with a certain angle theta. इसी एंगल थीटा पे स्कैटर्ड वेव हमको यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, ये तो सिंपल स्कैटरिंग हो गया. अब हम देखते हैं दो दो तरीके की स्कैटरिंग प्रोसेस हो सकती है. एक तो इलास्टिक एंड दूसरा इनइलास्टिक, है ना. इलास्टिक स्कैटरिंग, for example, when the scattering process happens, if there is no exchange of energy, that means the kinetic energy of a incident beam remains the conserved, है ना. उसकी जो बीम है काइनेटिक एनर्जी, बीम की काइनेटिक एनर्जी, if it is conserved, okay, after collision, so such scattering is known as elastic scattering, है ना. so जितना इंसिडेंट एनर्जी है उतना ही आउटगोइंग एनर्जी है. so there is no such exchange of एनर्जी, है ना. फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्कैटरिंग, है ना. रिलेटिव स्कैटरिंग आपने पढ़ा होगा कि उसमें उतना ही एनर्जी या फ्रिक्वेंसी रहता है जितना कि इंसिडेंट है ना. सो दैट यू कैन कंसीडर एज ए इलास्टिक स्कैटरिंग. नाउ द अदर स्कैटरिंग that can be possible when you have exchange of the energy, है ना, of incident beam with the scatterer के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, and there is a change of the energy of the scattered beam, and this kinetic energy could be higher or could be less as compared to the incident, है ना. so ये दोनों तरीके की हो सकती है. so such scattering process is known as a inelastic scattering, है ना. if it is a neutron case, neutron is scattering with a certain particle, then you will call it as a inelastic neutron scattering, है ना. तो आप इस सेकंड फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने दोनों सिचुएशन, लेस एनर्जी या गेन एनर्जी, ठीक है, फोनॉन जिसमें एक में या तो एब्जॉर्ब होगा या फोनॉन एक में लिबरेट होगा, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर बना हुआ है ना. व्हेन न्यूट्रॉन लॉसेस एनर्जी, है ना, तो उसका जो के एफ, समटाइम मैंने कभी इसको मैंने के प्राइम से रिप्रेजेंट किया है ना. so different book have a different representation. so this k prime,
है ना, और के सिंपल के इज इंसिडेंट वेव वेक्टर, है ना, इंसिडेंट वेव वेक्टर एंड द स्कैटर्ड वेव वेक्टर, ठीक है। व्हेन दे हैव, I mean, there is a loss of the energy of the incident particle, then the Kf will be less as compared to Ki. When Newton gain energy, in such a case, Kf or K prime will be greater than to the Ki, है ना. So these are the two process of inelastic scattering where your kinetic energy of incident beam is not कंजर्व, है ना, एक में जो है वो एनर्जी गेन हो रहा है, एक में एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है. सो दीज 2 and 3 पॉइंट्स वी शुड bring in our mind that what is the scattering and what is the term elastic or the inelastic. Okay, so moving little bit further, okay, let us see, this is a beam of neutrons coming from the accelerator. Okay, न्यूट्रॉन्स बीम जो है वो आपको एक्सेलेरेटर में से ही मिलेगी, है ना. You cannot produce in a laboratory source. Okay, so this energy can be controlled when this incidence beam fall on a target material. इस target materials पे जब fall होंगे तो and scattered, here you will get scattered profile, है ना. ये जो scattered profile है, this can be gathered by a detector, है ना. ये जो एक्सेस है इसकी इसकी एक्सेस से ये थीटा बना के scattered होगा, and this detector can be attached with a certain goniometer or the scale. So this detector can detect the scattered profile of the incident beam. Okay, so let us see the number of particles collected by this detector D. ये डिटेक्टर डी के द्वारा कितने पार्टिकल कलेक्ट किए जाएंगे, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम देखते हैं, है ना. सो लेट अस सी, दिस इज डी एन. ये क्या है, डी एन कौन सा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलेक्टेड इन द डिटेक्टर इज डी एन. ओके, this experiment, I mean the number of particles collected by a detector. Okay, uh, the number of particles collected by a detector, it basically actually depends on the time. That means if you run a experiment for 5 minutes, the number of particles for a particular theta will be a different story. When you run the same experiment for 2 minutes and collect the data at the same theta, so obviously the number of particle collected by this detector will be less, है ना. So there is a trivial dependency of the data or the collected data by the detector, and it depends on the time t. So you will have a time t. So the number of particles dn basically is proportional to time t. Okay, now uh, this number of particles collected in the detector is also depends on the solid angle, है ना. यहाँ पर आपने ये जो solid angle बनाया, okay, this solid angle सस्पेंड, आई मीन ये जो डिटेक्टर के द्वारा इस स्कैटरिंग सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा 3 डायमेंशनली, दैट एंगल इज नोन एज ए सॉलिड एंगल. सो दिस इज डी ऑफ ओमेगा. Okay, so if you put detector over here somewhere here, है ना, if you put a detector somewhere far away, है ना, so so that means the number of particles gathered by this detector again will be confirmed by this solid angle सस्पेंडेड बाय दिस डिटेक्टर ऑन द स्कैटरिंग सेंटर, है ना. तो इसके सेंटर पे ये जो डिटेक्टर है ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है उस पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निर्भर करेंगे, है ना. आपने फाइबर ऑप्टिक्स में देखा होगा कि जब किसी ऑप्टिकल फाइबर के जो है वो रेडिएशन गैदर करने की जो एबिलिटी है, it depends on the numerical aperture and this solid angle, है ना. So here also this solid angle will play important role, and this is again
directly proportional for the number of particles collected in the detector. ठीक है, so here we have understand two quantities. Now the third quantity is intensity. That means the intensity of the incident beam. Okay, that means the number of particle crossing per unit area. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना. एक पर्टिकुलर एरिया से कितने समय में, एक पर्टिकुलर समय में कितने पार्टिकल जो है वो क्रॉस कर, न्यूट्रॉन्स बेसिकली क्रॉस कर रहे हैं एंड मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट, है ना. सो दिस इज अगेन इंटेंसिटी डिपेंडेंसी ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलेक्टेड इन द डिटेक्टर. ओके, थर्ड, not third, fourth, है ना. फर्स्ट इज टाइम, द सेकंड इज द d of omega, and third is intensity I. Fourth is number of target particles. Okay, again, if you have a very less number of target particles, obviously the scattered particles will be less over here in the detector. And if you have a large number of scattering centers, then the intensity of the particles in the detector collected by the detector will be more. So you will have a final a dependency of the number of particles collected in the detector will also depends on the number of target particles present in the target, no. ठीक है, सो इससे हम जो है वो इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा ये हमने लिख लिया. ओके, नाउ this proportionality sign, has a very interesting property. Okay, if I remove this proportionality sign, so I can write dn is, let us say, sigma theta phi, and this is known as a differential scattering cross section, and this t omega I and t. Okay, so this is my equation. If I remove the proportionality sign, so this sigma theta phi is known as a differential scattering cross section, है ना. So this can be finally determined if you want to determine the sigma theta phi. Okay, so this will be dn upon d of omega. Okay, है ना. So I have another lecture on how to determine this scattering cross section on YouTube, so you can visit there. But in every experiment we used to try to find out this scattering cross section at large in each and every uh, our experiment. Okay, so now moving to the original problem, that is inelastic scattering of the neutron by phonon. ठीक है, इसको करने के लिए हम मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हम ये निकाल सकते हैं. ओके, सो in this case the scattering of neutron beam by a crystal lattice can be determined by the general wave vector conservation law that we have written. हमने कल लिखा था, क्या लिखा था, इसकी is incident wave vector, k prime is scattered plus g, है ना. g क्या था, रेसिप्रोकल वेक्टर, लैटिस वेक्टर, एंड प्लस माइनस कैपिटल के. ठीक है, Yes, sir. तो this k is due to phonon, it is absorbed by or liberated in the process. So this is our general vector form of the scattering. ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 mv स्क्वायर, है ना, जो जनरल फॉर्मूला. सो m यहाँ पर मास ऑफ द न्यूट्रॉन हो जाएगा mn, एंड v इज सिंपल वेलोसिटी. ठीक है, जी सर. okay, so now I just want to write this kinetic energy in terms of
मोमेंटम, है ना. सो ठीक है. सो आई कैन मल्टीप्लाई m. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this equation will be 1 by 2 mn square v square upon m n, है ना. Into M. ठीक है. M and हाँ. So simply this will be p square, है ना. p is the M हाँ. momentum, so you Hmm. can write p square upon twice, M M N. है ना. या p स्क्वायर हमने पिछले क्लास में देखा था कि फोनॉन डज नॉट हैव फिजिकल मोमेंटम बट इट हैज ए क्रिस्टल मोमेंटम, सो आई कैन राइट in terms of crystal momentum, that is h cat k, है ना. h cat is reduced Planck constant and k is wave vector या wave number, है ना, upon mn या k point in the momentum space. So this is kinetic energy of the incident neutron. In similar fashion, if k dash be the wave vector of the scattered neutron, its energy will be same fashion. I can write kinetic energy of scattered. ये अभी इंसिडेंट का लिखा. I can write again in the, yeah, this is incident. ठीक है. kinetic energy of scattered, this will be 1 by 2, okay, h cat square upon k K. prime square. K prime is scattered wave vector, ठीक है, Yes, upon sir. twice Upon M of N. m n, है ना. ठीक है. So this Yes, is sir. kinetic energy. Now if we follow the law of conservation of energy, then conservation of energy मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है इसमें या तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो उतनी ही आपको स्कैटर्ड एनर्जी मिलेगी, या यदि कहीं पे कोई लॉस हुआ है या क्रिएशन हुआ है, सो दैट एनर्जी हैज टू बी एडेड इन द स्कैटर्ड एनर्जी, सो दैट विल इक्वल टू द इंसिडेंट, है ना. सिंपल इफ आई राइट एनर्जी इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट एनर्जी लिखूं, इंसिडेंट, है ना, दिस विल बी स्कैटर्ड, है ना, स्कैटर्ड, और प्लस माइनस जो भी एनर्जी जो है वो या तो गेन हो रहा है ना, या लॉस हो रहा है. सो depending upon this energy you will have this conservation of energy law over here. So on the on applying this law further, I can write h cat, this is incident upon twice mn, ठीक है. Yes, sir. that will be equal to h cat square k prime square upon twice of mn, और प्लस माइनस क्या होगा, h cat, क्या क्या लिबरेट हो रहा है, ओ, ठीक है. सो व्हाट इज आई मीन यहाँ पर फोनॉन या तो क्रिएट हो रहा है या फोनॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फोनॉन की एनर्जी क्या होगी, एच कैट ओमेगा. सो दिस विल बी अ कंप्लीट एनर्जी फॉर द inelastic scattering of Phonon. neutron, where h cat omega is the energy of the phonon which is created, जब वो प्लस Neutron. साइन होगा तो क्रिएट होगा, और एब्जॉर्ब व्हेन माइनस साइन होगा, है ना. Yes, In, sir. in order to find the dispersion relation from these equation, it is necessary to find the experimentally the gain or the accurate determination of phonon spectra, है ना. तो हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि के और के प्राइम के बीच में रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपको क्या होता है ना. इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के प्राइम, देन यू विल गेट the phonon energy and the phonon frequency, है ना. Yes. We will get this energy. So experimentally यदि हम
के और के प्राइम के बीच में रिलेशनशिप देख पा रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सो इन दैट केस वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द फोनॉन डिस्पर्शन कर्व. So let us see what is experimental determination of phonons. Okay, experimentally ये जो है बेसिकली ट्रिपल एक्सेस न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से ही हम न्यूट्रॉन और फोनॉन आई मीन फोनॉन डिस्पर्सन कर्व जो है वो हम ड्राइव करते हैं. स्पेक्ट्रोमीटर कभी आप लोगों ने देखा है? आई होप आपने सभी ने देखा होगा बीएससी में कोई भी जो ऑप्टिक्स का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बीट. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आपने जिस प्रिज्म में उसका डिस्पर्सिव पावर निकाला होगा या उसका जो क्या और भी दूसरा ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखा होगा. सो एवरीवेयर यू हैव यूज ए स्पेक्ट्रोमीटर, है ना. किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर के दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. एक तो सबसे पहले सोर्स होगा, है ना. सोर्स के बाद एक कॉलीमीटर होगा. सोर्स से तो जो है वो इनफाइनाइट रेज आ रही हैं, उसको आपको कॉलीमेट करना है, पैरेलल करना है, सो दैट यू कैन शाइन ऑन द सैंपल, है ना. सो फिर कॉलीमीटर होगा, है ना, या दूसरे केसेस में मोनोक्रोमीटर हो सकता है. फिर उसके बाद आपके पास एक प्रिज्म टेबल होती है जो हमारा सिंपल है, या आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड जिसपे कि आप सैंपल को माउंट कर सकते हैं, है ना. फिर उसके बाद एक टेलीस्कोप होगा जिससे कि आप देखते हो. अब चूंकि यहाँ रेडिएशन है तो रेडिएशन को तो आप देखोगे नहीं, उसके लिए आपको डिटेक्टर लगाना पड़ेगा. सो यू कैन पुट डिटेक्टर ओवर देयर. सो सच स्पेक्ट्रो आई मीन दिस इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर. यही सब जगह होगा, है ना. सो फॉर द न्यूट्रॉन इसमें हम जो है वो ट्रिपल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं. ये पहला मोनोक्रोमीटर, ठीक है. यहाँ से जो मोनोक्रोमीटर यहाँ से दिस इज न्यूट्रॉन बीम इन जनरल, है ना. इसकी इनर काइनेटिक एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सेलरेटर, है ना. एक्सेलरेटर का नाम आपने जानते हो? वो एनालाइज हुआ. Okay, so I will just repeat again because it is not recorded. So when we have a neutron beam over here, okay, this neutron beam fall on the monochromator, first stage, first axis, and this beam again go from the collimator, and the basic work of the collimator is to make these rays parallel, okay, so that this beam cannot interfere by themselves. देन अगेन फिल्टर एंड फॉल ऑन द सैंपल से स्कैटरिंग होने के बाद ये एनालाइजर में जाते हैं और एनालाइजर से डिटेक्टर में. इसका और सिंपलेस्ट जो डायग्राम है वो यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है ना. यू कैन सी हियर दिस मोनोक्रोमेटर जो है वो आपको नॉन फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी को आपको इंसिडेंट कराना है सैंपल पे वो आप चूज कर सकते, सिलेक्ट कर सकते. सो हियर यू हैव इंसिडेंट wave vector ki, fall on the sample, and then scatter is kf, और यहाँ से analyzer, ठीक है. somehow in this experiment if we are able to understand the dynamics of this ki and kf, है ना. ये ki और kf की यदि डायनेमिक्स हमको पता चल पा रही है, एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो वी विल बी एबल टू ड्रॉ द डिस्पर्शन कर्व एक्सपेरिमेंटली. थ्योरेटिकली तो हमने जब मोनो एटॉमिक चेन और डायटॉमिक चेन देखा था तब हम देख चुके थे, बट हियर दिस ट्रिपल एक्सिस स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर will allow us to determine those theoretical curve experimentally. हम इनको एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं. अब ये किस पे वर्क करता है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना. एट द मोनोक्रोमेटर एंड एनालाइजर पोजीशन न्यूट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, है ना. सो ये सिंपल 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ब्रैग्स लॉ यहाँ भी फॉलो होता है ना. n इज द इंटीजर, आप यहाँ देखेंगे आई जो यहाँ पर m के लिए है मोनोक्रोमेटर का लिए, और a जो है वो एनालाइजर के लिए, जो थीटा एनालाइजर का है. सो दिस इक्वेशन जनरली यहाँ भी फॉलो होगी. द सेटिंग ऑफ द एंगल थीटा आई कॉजेज ए फैमिली ऑफ क्रिस्टल प्लेन, है ना. ये क्रिस्टल प्लेन्स पे फॉल होगा यहाँ, एंड देन इट विल गेट स्कैटर्ड. दिस सैंपल से फॉल हुआ और यहाँ से
लैटिस प्लेन से स्कैटरिंग यहाँ पर पॉसिबल होगी। Hence a monochromator transform a polychromatic beam of neutron to a beam of neutron with wavelength number k 2k and respect। मतलब हम यहाँ से सिलेक्टिविटी, मोनोक्रोमेटर जो है वो हमको अलाउ करता है कि हम सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम्स विथ वेव नंबर कैन बी फॉल ऑन द सैंपल। ठीक है, नाउ बाय द बेरिंग द स्कैटरिंग एंगल थीटा एस, दैट इज द सैंपल, यहाँ पर साई था और यहाँ पर आई है, ये इधर थीटा एस है और यहाँ पर साई है। So depending upon this angle we can get the relationship between ki and kf, है ना। angular distribution will be collected by a detector, ये detector कर लेगा, है ना। So if we are really able to get these point, then we will draw basically the dispersion curve। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल आपको एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन QLU RLU, इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्टिवली ये जो न्यूट्रॉन आफ्टर डिफ्रैक्टिंग इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर आपको डिटेक्टर में मिल जाएगा, है ना। सो दिस डिटेक्टर विल आइडेंटिफाई दैट इंटेंसिटी। जो मैंने बताया था, जो सिग्मा थीटा फाई, दैट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, बेसिकली that the differential cross section will allow us to determine amplitude of the scattered wave, है ना, वो एम्पलीट्यूड बताएगा। अब देखिए, अब जो स्कैटरिंग हो रही है, अब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहे हैं यहाँ पर आके। अब इसकी डायरेक्शन, ये सीधा भी जा सकता था यहाँ इस तरीके से, वाई इट इज मूविंग दी। सो डिपेंडिंग अपॉन द फोनॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द लेटेस्ट वाइब्रेशन, वो फोनॉन से ये न्यूट्रॉन विल बी ट्यून, है ना, या तो उसकी एनर्जी वहां पर फोनॉन एब्जॉर्ब होगा या फोनॉन लिबरेट होगा। सो फाइनली द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन विल बी मॉनिटर्ड, है ना। सो इस तरीके से आपको ये फोनॉन कर्व एक्सपेरिमेंटली देखने को मिल जाता है। अब यदि आप इनको यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोनॉन कर्व। सो दिस इज क्यू इज के, है ना, हमारी डायरेक्शन, ये फ्रिक्वेंसी है, ये ट्रांसवर्स है एंड ये लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर हमने ऑप्टिकल नहीं दिखाया होगा, ये पीवी का Q00 डायरेक्शन, QQ0 डायरेक्शन एंड QQQ डायरेक्शन, है ना। यू विल हैव अ ट्रांसवर्स वेव एज ए डीजनरेट वेव, ये ट्रांसवर्स वेव डीजनरेट होती है, लेकिन जो एल है वो एक इस तरीके से मिलती है। तो ये पॉइंट है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और जो थ्योरेटिकल है वो इस तरीके से बने। सो यू कैन गेट द एक्सपेरिमेंटल डेटा एज वेल एज थ्योरेटिकल। यदि मैं इसको और समझने की कोशिश करूं, सो पहले तो ये हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या है ना, एल क्या है, डेल्टा क्या है, या के क्या है। तो यदि आप इसका ये ब्रिलियन जोन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसी भी फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है, ये जो Yes, sir. पॉइंट है, दिस पॉइंट इज जोन सेंटर, उल्टा एल, है ना। यहाँ से आप देखेंगे ये सिग्मा कहाँ मूव कर रहा है, के, है ना। सो जो एल से के की ओर मूव कर रहे हैं, ये सिग्मा डायरेक्शन, जिसको कि हम QQ0 भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Yes, sir. देखिए दूसरा है जोन सेंटर से एक्स की ओर, है ना। जोन सेंटर से एक्स किधर है, एक्स इसमें दिख नहीं रहा है, वेयर इज एक्स, ये है तो सर सिग्मा के लेफ्ट साइड एक्स है तो। आई कांट सी, हाँ हाँ, ये है दिस, ये ना, ये है ना एक्स, है ना। सो यस सो सर, हाँ। सो द डायरेक्शन इज डेल्टा। सो दिस इज एक्स, आई मीन गामा से एक्स की ओर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन इज डेल्टा, एंड दिस डायरेक्शन इज Q00, है ना। इसी तरीके से ये QQQ, ये ट्रिपल क्यू है, तीसरा वाला ट्रिपल क्यू, है ना। ये इसमें आप देखेंगे जोन सेंटर से आप एल की ओर मूव कर रहे हैं, जोन सेंटर से एल की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये, है ना। सो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स हो गई, है ना, ये हमारी एक्स वाई प्लेन में हो गई, और ये हमारी एक्स वाई जेड प्लेन में हो गई, है ना। तो इसलिए Q00, QQ0 और QQQ
क्यू, है ना। इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, यहाँ पर ट्रांसवर्स जो है वो अलग अलग हो गई, यहाँ पर कैसी है, डीजनरेट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल एकॉस्टिक और ये ट्रांसवर्स एकॉस्टिक और ये ऑप्टिकल ब्रांच। So this is the complete method, okay, to get the phonon dispersion curve. ठीक है, I am going to stop over here.